Hello, my dear student. Here we have a last part of chapter number 6, Material Around Us, and we will discuss NCERT question answer after that. Okay, let's start. Uh, in our last video, we have discussed the concept that all the objects are made up of material like paper, wood, clothes, glass, metal, plastic, and clay. And we have also discussed about the grouping of material is basically done on the basis of properties like shape, color, hardness, sharpness, shine is a very important scientific method. And we have discussed about the ancient pottery techniques. We have discussed in detail about that. And after that, we have studied about the types of material depending on their ability to let the light pass through it. Like we have transparent, translucent, and opaque material. Okay, and we have discussed about the various material properties like appearance, hardness, ability to dissolve in water, lustrous material. Usually metal have shiny surface, while non-lustrous materials like wood and rubber do not. And we have also discussed about the hardness and softness of material and its shining properties, that is called lustrous material and non-lustrous material. Okay, let's move further. Here we have activity number 6.8. Let us measure. Let us take three identical paper cups. Fill each cup half with the provided material. Okay, student, आपको तीन कप ले लेने हैं या फिर you can also take bowl. Okay, bowl is कटोरी. तो आप किसी भी तरीके का तीन सेम पेपर ले लो, पेपर कप ले लो या फिर तीन कोई भी कटोरी ले लो. Fill one with water and mark it as A. पहले कप को आप पानी से भर लो and you have to mark it as A. Second we filled with sand and mark it as B. Second को आप sand से fill कर लो and उसको B mark कर दो. And the third with pebbles and mark it as C. और तीसरे कप को आप pebbles में छोटे छोटे कलरफुल स्टोन से भर लो और उनको C mark कर दो. Okay, or then predict which one would be heavier and which one would be lighter. अब आपको प्रिडिक्ट करना है, मतलब गैस करना है कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा. आपको अभी अनुमान लगाना है एंड उसके बाद क्या करना है, आपको हर कप को वेगिंग मशीन के ऊपर इस तरीके से रखकर वेग करना है और उसकी जो रीडिंग्स आ रही है वो कितने ग्राम का है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. And after that, compare the data and infer which is heavier and lighter. फिर डेटा को कंपेयर करके आपको कंक्लूड करना है कि कौन सा हेवी था, क्यों था और कैसे था. Okay, and from this activity we can say that any object which is heavier or lighter can be measured in terms of the property called mass. मतलब किसी भी चीज का मास को मेजर करके आप मेंशन कर सकते हो कि ये कौन सा मटेरियल हैवी है और कौन सा मटेरियल लाइट. And the one which is heavier has more mass and the one which is lighter has less mass, है ना, has a less mass. तो आप इसको कैसे करोगे, इस तरीके से आप ए बी सी कप ले लेना, उनको मेजर करना और उसकी वैल्यू को, उसकी रीडिंग्स को नोट डाउन करना. ओके, weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. है ना, आप किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसको वेट मेंशन करते हो क्योंकि उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेग करके. तो इन कॉमन लैंग्वेज जो मास होता है उसी को हम वेट मेंशन करते हैं, है ना. बट यस देयर इज सम डिफरेंस अमंग मास एंड वेट, वो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो हमने इन तीनों कप को मेजर किया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला देखो जरा. सैंड बी, जैसे जो बी कप है या बी बोल है, is denser than water A and pebbles usually leave more air gaps between them. देखो यहाँ पे जो पत्थर्स हैं, तो पत्थर के बीच में क्या होता है, इनके बीच एयर गैप्स हो जाते हैं, है ना. तो इसीलिए, और इसमें सैंड में कोई एयर गैप्स नहीं होगा. देयरफॉर सैंड बी वुड बी likely to be heaviest.
जो सैंड भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सबसे ज्यादा भारी होगा. Pebbles may be lighter than sand but could still weigh more than water. जो पेबल्स हैं, स्टोन है, वो सैंड से तो हल्के हो सकते हैं लेकिन पानी से वो भारी है. एंड वाटर मे बी द लाइटेस्ट बिकॉज लिक्विड्स आर जनरली लेस dense than solid like sand and pebbles. Okay. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have. अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैम जब आई तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bags on your seats and sit down." नेक्स्ट डे जब मैम विद्या क्लास में आई तो बच्चों ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट करा. कैसे करते हैं हम लोग, गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसे ही करते हैं. एंड देन सी रेसिप्रोकेट, उन्होंने रिप्लाई करा और डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली उन्होंने अच्छे से बताया, बच्चों प्लीज कीप योर बैग ऑन योर सीट्स, अपने सीट पे बैग रखो और फिर बैठ जाओ. अब क्या हुआ, students are not able to sit because bags are kept on their seats. बच्चे तो बैठ ही नहीं पाए. क्यों भाई, क्योंकि उनके सीट पे बैग रखी थी. तो मैडम विद्या ने पूछा, why are you not sitting, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे हो. The students replied that there is no place to sit because the bags have occupied the space. तो बच्चों ने रिप्लाई करा कि मैम देयर इज नो प्लेस टू सिट, यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है. क्यों, क्योंकि बैग्स हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस, बैग ने जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है. Continuing the conversation, she provides two identical glass tumblers to two students and encourages them to pour remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumbler. इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैम ने बच्चों को दो ग्लास टम्बलर दिया. ओके, इट्स अ ग्लास ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास ही है पर वो ग्लास का बना हुआ है, इसको हम टम्बलर कहते हैं. तो मैम ने बोला कि आप अपने वाटर बॉटल से इस दोनों ग्लास टम्बलर को भर दो. तो बच्चों ने क्या किया, on pouring water in the glass tumblers the student observed that one glass tumbler gets half filled with water while the other is almost completely filled with water. जब बच्चे उसको भर रहे थे तो एक टम्बलर तो उनका पूरा भर गया पर एक जो टम्बलर था वो आधा ही भरा. देखो, है ना जैसे पिक्चर में दिख रहा है. अब क्या हुआ, तो मैम ने पूछा व्हाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन टू टम्बलर्स. तो मैडम ने बोला, मैडम विद्या elaborate that both tumbler have the same capacity. The water level differ in each case which indicate that the amount of water in each tumbler is different. उस वाटर लेवल के बेस पे यू कैन से कि दोनों टम्बलर में वाटर का लेवल कम है. और वाटर लेवल यदि इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है तो यू कैन से कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर है. या फिर आप कह सकते हो कि इसमें पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है और इसमें पानी का वॉल्यूम कम है. ओके, the water in the first tumbler occupies less space, indicating that the volume of water in tumbler is less than the water in other tumbler. The space occupied by the water represent its volume. मतलब कोई भी चीज किसी के जगह को ऑक्यूपाई करती है उसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं. ओके, why was I not able to transfer water from jug into the empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. क्यों, क्योंकि जग का वॉल्यूम ज़्यादा है और इस बॉटल का वॉल्यूम कम, इसीलिए जग का पूरा पानी इस बॉटल में नहीं आ पाता है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सॉरी. You may have noticed drinking water bottle of different sizes being sold in the market. Have you noticed 1 liter, 500 ml, 200 ml, etc. written as net quantity on the bottles? These indicates the volume of water in the bottles, है ना. आप जब भी कोई वाटर बॉटल या फिर आप मिल्क का पैकेट खरीदते हो
उस पर लिखा रहता है कि ये 1 लीटर का है, 500 ml का है, या फिर 200 ml का है। इट मीन्स कि वो हमारे उस लिक्विड की क्वांटिटी को मेंशन कर रहा है कि वो उसमें पानी कितना है या फिर दूध कितना है। लाइक 500 ml और 500 ml ऑफ मिल्क, है ना। It indicates its volume. Now you have become familiar with many properties of material. However, all the material do not possess all these property. मतलब सारे मटेरियल में सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर क्वेश्चन आता है, are they any property which can be shown by all material? If yes, what are those? मतलब क्या ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी है जो सारे मटेरियल में मिलता हो? Answer is yes. Two properties very common in all the material. What is this? Mass and volume. Every material has mass and every material take up space. It means it has volume also. Okay, चलो next देखते हैं. What is matter? Mass and volume are the two properties that are possessed by all material. Can we give a general name to anything that possesses these two properties? Yes. Anything that occupies space and has mass is called matter. बच्चों ये definition आपको याद रखनी है, that anything that occupies space and has mass is called matter. Okay, ये definition आपके exams में आ सकता है. The mass gives the quantity of matter and the unit to measure it are gram, kilograms. The space occupied by matter is its volume and the units to measure the volume are liter or milliliter. Okay? अब देखो. A kilogram is the unit of mass in the international system of unit. ये हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट. तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में मास के यूनिट क्या है? केजी. ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे, जैसे हमने पहले लिखा था. किलोग्राम इज एब्रिविएटेड इन लोअर केसेस एज केजी. हमने मीटर्स का ही पढ़ा था ना. सिमिलर वे में हम केजी का भी करते हैं, इनको केजी में लिखना है. ठीक है. There is no space between K and G. यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा. एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल. सिंबल के बाद भी कोई फुल स्टॉप नहीं होगा. यहाँ पे सिमिलर आपके स्मॉल में K है और स्मॉल में G है. ओके, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. ऑब्वियसली किसी स्टेटमेंट के एंड में यदि आएगा तो आप फुल स्टॉप लिख सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई गैप हो, वो भी नहीं होगा. ठीक है. While writing the mass, always leave a space between the numbers, numerical value and the unit. For example, यदि आप 8 kg लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है 8 space and kg. ओके, समझ के. For example, we have a mass of 7 kilograms. It would be written as 7 kg, not kgs. तो यहाँ पे kgs भी नहीं होगा. ओके, ये सिर्फ 8 kg होगा. ठीक है. और भी ऐसा, मतलब ये भी याद ध्यान रखना, दोनों ही स्मॉल है, ऐसा नहीं समझना कि एक कैपिटल है. ओके, दोनों ही आपके स्मॉल लेटर में है. Similarly, liter is abbreviated as capital L and milliliter is ml. ओके, आप जैसे यहाँ पर आप 7 kg लिख रहे हैं, वैसे ही जब आप लीटर्स में लिखेंगे तो यू कैन राइट 700 मिलीलीटर्स. ओके, यहाँ पे एल आपका कैपिटल होगा और लॉजिक सेम होगा. नो स्पेस, नो स्पेस बिटवीन एम एंड एल. एंड एल हमेशा कैपिटल में होगा और एम स्मॉल में होगा क्योंकि वो मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम विल बी इन लोअर केस एंड एल विल बी इन अपर केस. ओके, SI unit for
वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर इज एब्रिविएटेड एज मीटर क्यूब। हाँ, किसी भी चीज के वॉल्यूम को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो हम मीटर क्यूब मेंशन करते हैं। आप एम के सुपरस्क्रिप्ट में आप क्यूब यूज करते हो, ठीक है, फॉर वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। ओके, इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हायर क्लास में ये सारी चीजें और भी इजीली क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। या इसके मन में क्या क्वेश्चन आया? इज एयर इज मैटर? अब सोचो, कैन ऑल द मटेरियल अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? डिस्कस विद योर फ्रेंड। अब आपको अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें मैटर हो सकती है। इन जनरल तो हर चीज मैटर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, एंड सो इज द कप। Materials are types of matter used in creation or making of object. Obvious है ना? जो भी चीजें आप मटेरियल एज अ मटेरियल यूज करते हो, वो मैटर को ही तो क्रिएट करते हैं, या फिर आप किसी मैटर को भी यूज करके मटेरियल बना सकते हो। If we learn that material look different and behaves differently, हाँ, we grouped material on the basis of similarities and differences on their property। जो different types of material हैं स्टूडेंट, उनको basis of properties हम उनको classify करते हैं। ओके, उनकी grouping करते हैं। We find grouping useful as it help us study and observe pattern in their properties of things। हम उनकी grouping करते हैं तो उनके pattern को समझने में हमें easy होता है। Humans have been classifying not only things but also rock, plant and animals। हमने पढ़ा था ना, plant को भी कैसे classify करते हैं। हर चीज को हम classify करते हैं, क्यों? ताकि हमें समझने में easy हो। We have learned about the classification in the living world in the chapter diversity in living world। इस चैप्टर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। ओके, just like in the living world, classification of the non-living world is also done on the basis of their properties। Obviously स्टूडेंट, हर चीज का क्लासिफिकेशन होता है। इवन आप पढ़ने के लिए अपनी पेंसिल को क्लासिफाई कर लेते हो, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सा इरेजर किधर रखना है, हर चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्लासिफाई करते हो, ताकि आपको इजीली आप उसको एक्सेस कर सको, इजीली आप उसको ढूंढ सको। ओके, नेक्स्ट देखो। Can you think about what changes the invention of plastic brought to humans? Is it a boon or a ban? अब आपको ये बताना है, जो प्लास्टिक हमारे लाइफ में आया है, वो हमारे लिए बून है या फिर एक बहन है? मतलब इट्स इट गुड और अ बैड? सोचो और बताओ। वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये बताती है कि हमने इतने सारे मटेरियल के बारे में पढ़ा है। But yes, most of the materials that we see today would have also existed earlier। मतलब जो हमने अभी देखा है, ऑब्वियस है वो पहले भी एग्जिस्टेड थे, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में थे, हमारे नेचर में थे। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाई देम देन। उस समय लोग कैसे उसको क्लासीफाई करते थे, बताओ। अब देखो, द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक हैज ब्रॉट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस टू ह्यूमन लाइफ, making it as a subject of debate at whether it is a boon or a bane। तो मतलब आपको क्या लगता है, प्लास्टिक शुड बी बैंड और इट शुड बी यूज? बट यस स्टूडेंट, देखो, इन जनरल डे टू डे लाइफ में ऑब्वियस है प्लास्टिक हमारे लिए बून भी रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास इजीली हम एक्सेस कर सके, हमें इसका जो वर्सटाइल नेचर है उसके हम लोग हर जगह यूज करते हैं, पैकेजिंग में, डे टू डे लाइफ में, मेडिकल फील्ड में। क्यों क्यों? क्योंकि इसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लाइट वेट है, किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाता है, रिएक्टिव नहीं है, इसका मतलब कोई भी चीज़ इसमें स्टोर कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी कॉस्ट भी कम है। तो इन सब रीजन से ये बहुत अच्छा है ना? बट जब इसके हम लोग इसके कॉन्स देख इसके प्रोस इसके कॉन्स देखते हैं, मतलब हमारे हमारे जो इन्वायरमेंट में इसका इफेक्ट देखते हैं,
हमारे वाइल्ड लाइफ पे इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका लॉन्ग रन पे इसका इफेक्ट देखते देखते हैं, हमारे नेचर कैसे अफेक्ट हो रहा है प्लास्टिक से। तो हमें लगता है प्लास्टिक को हमें बैन कर देना चाहिए, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत खराब होता है ना। तो आपको भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक्स को यूज ना करें। ओके, here we have one slope. A similar classification system existed in ancient India. Ayurveda, one of the Indian medical system, too has a system of grouping things. देखो आयुर्वेद में भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को एक श्लोक के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। इसमें इन टोटल 20 प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 को हमने रिप्रेजेंट किया है और 10 उसके अपोजिट हैं जो इसके इससे रिलेटेड है। ओके, अब देखो कौन कौन से, ये वन बाय वन प्रॉपर्टीज हैं। गुरु मंद हीन स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणाः चक्षु विशदाः विंशति स विपर्यः। जो 10 प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो 10 अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इन टोटल 20 प्रॉपर्टीज, इसकी के बेस पे हम लोग किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लांट्स हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, इवन किसी भी इन्वायरमेंट की चीज हो, इवन फूड ही क्यों ना हो, हर चीज को। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज गुरु, मतलब जो बहुत हैवी हो, या फिर लघु हो मतलब लाइट हो। मंद मतलब स्लो हो, या फिर तीक्ष्ण मतलब फास्ट हो। हीम मतलब कोल्ड, या फिर उष्ण हॉट हो। स्निग्ध मतलब चिकना हो, है ना, जिसे फैटी कहते हैं। या फिर रुक्ष ड्राई हो। संलक्षण मतलब स्मूथ हो, मुलायम हो। या फिर खरा थोड़ा सा रफ हो, जैसे मोटा अनाज होता है। सांद्र मतलब सॉलिड हो, या फिर द्रव्य लिक्विड हो। मृदु मतलब सॉफ्ट हो, या कठिन हार्ड हो। या फिर स्थिरा स्टेबल हो, या फिर खला मूविंग करता हो, मूव करता हो, अनस्टेबल हो। सूक्ष्म मतलब स्मॉल हो। स्थूल मतलब बड़ा हो। या विशद नॉन स्लाइम मतलब ग्रीसी ना हो, है ना, ग्रीसी नहीं हो। और पिछला इज ग्रीसी, है ना, ग्रीसी सा हो, चिपचिपा सा हो। तो ये सारी क्वालिटीज के बेस पे हम लोग किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, किसी भी फिजिकल मैटर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यस दीज आर द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन आयुर्वेदा मेडिकल सिस्टम टू एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ मैटर और अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव a summary of the chapters. Objects are made from a large variety of material. An object can be made up of single material or a combination of different material. ऑब्वियसली बच्चों, यहाँ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं। तो हम लोग एक मटेरियल के भी यूज से कोई चीज बना सकते हैं, और नंबर ऑफ मटेरियल को मिक्स करके भी कोई चीजें बना सकते हैं। ओके, we can use different material to make objects with similar functions. The method of arranging objects into group is called classification. Material poses different properties which determine their use. Different material अपनी प्रॉपर्टी के कारण ही यूज होती है ना बच्चों। जैसे जहां आपको स्टील की जरूरत है वहां आप लकड़ी यूज नहीं कर सकते हो, जहां आपको लकड़ी की जरूरत है वहां आप स्टील यूज नहीं कर सकते हो। तो हम लोग प्रॉपर्टीज के बेस पे ही अलग अलग मटेरियल को अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं, और इन मटेरियल को जो हम अरेंज करते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। किसी भी चीज को अरेंज करना इन पर्टिकुलर ग्रुप या फिर किसी कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। Material are grouped or classified based on their similarities or differences in their properties. Same हमारे plants और animal में भी होता है। Materials can be grouped based on appearance such as lustrous, shiny material या फिर non-lustrous जो नहीं चमकते हो, या फिर जो based on the feel such as hard या फिर soft। ओके, जैसे sponge है या फिर wood है। Or material are grouped as transparent, translucent,
or material are grouped as transparent, translucent or opaque depending on how much we can see through it. आप किसी भी मटेरियल के आर और पार कितना देख सकते हो उसके बेस पे हम तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट के आप आर पार देख सकते हो, जैसे एक बेस सिंपल सा ग्लास होता है। ट्रांसलूसेंट के आस पास आप नहीं देख पाते हो, धुंधला देख पाते, जैसे आपका फ्रोजन ग्लास होता है। और ओपेक के आर पार आप जरा भी नहीं देख पाते हो, जैसे कि हमारा वुड होता है। ओके, some material are soluble in water and some others remain insoluble, मतलब कुछ मटेरियल पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। Anything that occupies space and has mass is called matter। ये डेफिनेशन याद कर लेना। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट है या फिर मास है, दैट इज कॉल्ड मैटर। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। ओके, mass quantifies the amount of matter present in an ऑब्जेक्ट। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। मतलब मास से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वॉट मैटर किसी भी चीज में प्रेजेंट है। अब देखो, you have to find the companion. Link the following words by putting arrows between words that have connection। आपको बस मैचिंग करना है, ये कौन सा किससे मैच कर सकता है। जैसे लस्ट्रस, आयरन और कॉपर दोनों लस्ट्रस है, दोनों शाइनी होते हैं, उनके वो मेटल होते हैं, तो उनकी जो सरफेस होती है वो चमकती है। देखो, प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक का हो सकता है, सॉलिड आयरन सॉलिड हो सकता है, वुड ओपेक हो सकता है ना, और ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट हो सकता है। यदि आपको कोई और भी कंपेनियन मिलेगा तो यू कैन मैच। ओके, नेक्स्ट वी हैव the following words from the chapter like lustrous, non-lustrous, soluble, insoluble, hard, soft, matter, mass, transparent, opaque, volume and translucent। ये सारे वर्ड्स हैं। स्टूडेंट को वन बाय वन 9 वर्ड्स लेना है और उनको ग्रिड में नोट डाउन करना है। देन द फैसिलिटेटर ईदर रीड्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स और वर्ड इटसेल्फ। उसके बाद जो जो फैसिलिटेटर है वो या तो डेफिनेशन रीड करेगा या फिर वर्ड, and the learner have to tick if the particular word is there in the grid। और learner को क्या करना है, टिक मार्क करना है कि वो वर्ड है या नहीं है, या फिर डेफिनेशन है या नहीं है, वो डेफिनेशन फाइंड आउट करके। और जिसने भी सबसे पहले वो 9 का 9 मैच कर लिया, उनको क्या चिल्लाना है, हुर्रे, एंड द टीम एंड द पर्सन विल बी द विनर। ओके, दिस वे यू कैन प्ले। अब देखो, अब ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, लेट्स राइट ऑल द 12 वर्ड्स। और इसका वन बाय वन मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, आप प्लीज एक वीडियो को पॉज पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल लस्ट्रस का क्या होगा, objects that have shiny appearance such as metals like gold and silver are considered as lustrous। अब देखो वो क्या बोलेगा, या तो वो lustrous बोले तो आप डायरेक्ट टिक मार्क कर लो, या फिर वो क्या बोलेगा, जो फैसिलिटेटर है वो बोलेगा objects that have a shiny appearance। तो लर्नर को जस्ट झट से टिक मार्क कर लेना है lustrous को। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉन lustrous। Objects that do not shine or reflect light are called non-lustrous. Example, wood or rubber. Opaque, that do not allow light to pass through them at all, are called opaque. For example, wood and metals. Transparent, that allow light to pass through them completely. For example, glass. Solubles, that can dissolve in water, are called solubles. For example, sugar. Hard material, objects that are difficult to compress or scratch. Okay, the amount of matter in an object is referred as mass, है ना। Volume is what, the amount of space that an object occupies is known as its volume. Insoluble, that does not dissolve in water, is called insoluble.
Soft, it can be easily compressed or scratched. Matter, that occupies space and has mass. Translucent, that allows some light to pass through, but yes, scattered it. Okay, let us enhance our learning. What you have to do, visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. आप यदि किचन में जाओगे तो आपने ऑब्जर्व करना है कि मम्मा ने मसालों को एक तरफ रखा है, स्नैक्स को एक तरफ रखा है, दाल को एक तरफ रखा है। क्यों? क्योंकि इससे उनको एक्सेस इजी हो जाता है। तो अब देखो, आप ये सारी चीजें नोट डाउन करोगे क्या, कि मम्मा ने अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करके अरेंज करके रखा है। इन द किचन ऑर्गेनाइजिंग एडिबल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ग्रुपिंग सिमिलर आइटम टुगेदर, है ना। हर चीज जैसे चाय पत्ती, चीनी, कॉफी यूज होने वाली चीजें फॉर पर्टिकुलर पर्पस, तो वो एक तरफ रखी हैं। दाल चावल एक तरफ रखा है, स्नैक्स खाने वाली चीजें एक तरफ रखी है। ग्रेन पल्सेस का एक सेक्शन है। मोस्टली स्पाइसेस का एक सेक्शन तो हमेशा होता है। तो इस तरीके से वो इजी हो जाता है मम्मा के लिए अरेंज करना या एक्सेस करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Unscramble the letter in column 1 and match with their properties in column 2. यहाँ पे एक लेटर है जो पजल्ड फॉर्म में दिया रखा है। पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर उनको मैचिंग करनी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मैटर, ये क्या है, सॉल्युबल, ये ट्रांसपेरेंट, ये लश्यर। अब इनकी मैचिंग कर दो, है ना, वन बाय वन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। The container which are used to store material in shops and home are usually transparent. Give your reason for this. क्यों? ताकि आप उसको देख सको, कितना उसका क्वांटिटी है वो देख सको, कब खत्म होने वाला है आप ये देख सको। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को हमेशा ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखें, ताकि वो हमें दिखती रहे। इजी हो जाता है एक्सेस, आप उसको इजीली ढूंढ सकते हो। क्यों? तो सबसे इजी विजिबिलिटी, ताकि वो हमेशा हमें दिख सके। कन्वीनियंस, है ना, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमेशा कि कितनी क्वांटिटी है। और ऑर्गेनाइजेशन, इजीली हम उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। अब देखो, state whether the statement given below are true or false. Wood is translucent while glass is opaque? No, it's false, है ना। वुड तो हमारा ओपेक होता है और ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट। एल्यूमिनियम फॉयल हैज लस्टर व्हाइल एन इरेजर डज नॉट। हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल में चमक होती है और इरेजर में नहीं होती। शुगर डिजॉल्व होता है पानी में, करेक्ट। एन एप्पल इज अ मैटर, it occupies no space, it occupies space, so it's false. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। We see chair made up of various material. हम लोग चेयर देखते हैं, सच एज वुड से बना होता है, कभी आयरन से बना होता है, कभी प्लास्टिक से बना होता है, कभी बैम्बू, वो जो बांस होती है ना, बेंत, उससे बना होता है। सीमेंटेड चेयर्स भी होते हैं पार्क में, स्टोन से बने हुए चेयर्स भी होते हैं। तो बोल रहा है फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं वो चाहिए हमें। तो अब हमें बताना है कि हम किस चीज से बनाएंगे, ठीक है। Which material is used to make chair to fulfill these properties? अब जैसे हार्डनेस है, तो हार्डनेस को अचीव करने के लिए किससे हम बनाएंगे, ताकि वो डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। बहुत दिनों के बाद भी हम उस पर बैठे तो वो मुड़े नहीं या फिर हिले नहीं। तो हार्डनेस के लिए क्या बनाओगे आप, वुड, आयरन, सीमेंट या स्टोन से। लाइट वेट के लिए आप किस चीज से बना सकते हो, ताकि वो इजीली उठ सके, प्लास्टिक से या बैम्बू से या कुछ प्लाईवुड से, करेक्ट। सॉरी। थर्ड क्या, डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स तो आप क्या पहनोगे, आप क्या बनाओगे, वुड से, बैम्बू से, प्लास्टिक से। एंड कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो इसके लिए आप बना सकते हो पॉलिश्ड वुड से या फिर प्लास्टिक से। मोस्टली स्टूडेंट
प्लास्टिक की चेयर्स हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, you need to have a container for collection of food waste, broken glass and waste paper। आपके पास तीन चीजें हैं। आपके पास फूड वेस्ट है, बचा हुआ खाना है, टूटे हुए ग्लास के टुकड़े हैं एंड वेस्ट पेपर है। Which material will you choose for containing containers of these type of waste? आपको कंटेनर को कलेक्ट करना है, पर इन तीनों वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए आपको कैसा कंटेनर का मटेरियल चाहिए होगा। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डू यू नीड टू थिंक ऑफ, बताओ। सोचो सबसे पहले। देखो, फूड वेस्ट है, खाना है तो खाना से तेल निकलेगा, पानी होगा, ग्रेवी हो सकता है। तो हमें ऐसा कोई मटेरियल चाहिए होगा जिससे पानी बाहर ना निकले, ऑयल बाहर ना निकले। जैसे आपने पेपर बैग ले लिया तो वो क्या होगा, वो गल जाएगा, फूड बाहर गिर जाएगा, है ना। अब ब्रोकन ग्लास है, ब्रोकन ग्लास को आपने पेपर में रैप किया तो वो बाहर आ जाएगा पेपर को कट करके, तो पेपर यहाँ भी यूज नहीं हो सकता। वेस्ट पेपर के लिए आप पेपर बैग यूज कर सकते हो। चलो तो देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। फूड वेस्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, इधर प्लास्टिक और मेटल का यूज करोगे। क्यों भाई, क्योंकि ये ड्यूरेबल होगा, इजी टू क्लीन होगा, रेजिस्टेंट होगा मॉइस्चर से, मतलब वो पानी को नहीं सोखेगा, एंड डज नॉट एब्जॉर्ब ऑडर, मतलब स्मेल को भी वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड फोर्थ क्या है, ब्रोकन ग्लास के लिए यू कैन यूज मेटल और थिक प्लास्टिक का डब्बा कोई भी, और वेस्ट पेपर के लिए यू कैन यूज कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बैग। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Air is all around us but does not hinder us from seeing each other. Whereas if a wooden door comes in between, we cannot see each other. It is because air is mm-mm, transparent and the wooden door is opaque. तभी तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो आंसर विल बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एयर इज transparent and wooden door is opaque। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Imagine you have two mysterious material like X and Y. When you try to press material X, it feels rigid and does not change its shape easily. On the other hand, material Y easily changes its shape when you press it. Now, when you mix both material in water, only material X dissolve completely. सपोज करो आपके पास दो मिस्टीरियस मटेरियल हैं, एक्स और वाई। जब आपने एक्स को प्रेस किया तो बहुत हार्ड था और उसने अपना शेप नहीं चेंज किया, पर जब आपने वाई को प्रेस किया वो उसने शेप चेंज कर लिया। जब आपने दोनों को मिक्स किया पानी में तो एक्स क्या हुआ, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, while मटेरियल वाई रिमेन्स अनचेंज्ड। वाई पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। What can material X and Y be? X and Y क्या हो सकता है? Can you identify whether material X is hard or soft? और आप क्या बता सकते हो X hard है या soft? और what about material Y? और Y क्या होगा? Now you have to justify your answer. सोचो जरा। अब देखो, X क्या है? X पानी में घुल गया था तो वो शुगर या सॉल्ट हो सकता है, करेक्ट। और वो हार्ड भी था क्योंकि वो प्रेस नहीं हो रहा था। और वाई हमारा प्रेस हो जा रहा था तो फिर वो स्पॉन्ज हो सकता है या फिर रबड़ हो सकता है, करेक्ट। तो आप क्या बोल सकते हो कि एक्स हमारा हार्ड है और सॉल्युबल है इन वाटर, और वाई हमारा सॉफ्ट है और इनसॉल्युबल है वाटर में, करेक्ट। तो मटेरियल एक्स कैन बी शुगर एंड सॉल्ट और वाई कैन बी रबर एंड स्पॉन्ज। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। हु एम आई, इट्स अ गेम, आपको गैस करना है। Identify me on the basis of given properties. I have luster, metal, कोई भी मेटल, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है। I can be easily compressed, मैं easily compressed होता हूँ। तो आंसर कैन बी
gas, rubber, eraser, rubber, sponge. Correct. I am hard and soluble in water. Sugar or salt. You cannot see clearly through me. Opaque material या फिर wood. Correct. I have mass and volume, but you cannot see me. ये तो बहुत easy है. Air. Make your own who am I. आप कोई भी अपना who am I बना सकते हो. Okay. और next देखते हैं. You are provided with the following material: vinegar, honey, mustard oil, water, glucose and wheat flour. Okay. आपके पास ये 6 मटेरियल है. Make any two pair of material where one material is soluble in the other and make two pair of material where one material remain insoluble. आपको दो पेयर बनाना है. ओके. एक पेयर में ये दोनों मटेरियल soluble होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे. दूसरे पेयर में ये दोनों मटेरियल इनसॉल्युबल होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे. तो क्या हो सकता है आंसर? आंसर कैन बी विनेगर एंड वाटर एंड ग्लूकोज एंड वाटर. और इनसॉल्युबल पेयर्स में क्या होगा? मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर एंड wheat flour and water. Okay, student? Okay, it's enough for today. Thank you, student. We'll meet in our next video with our next chapter. Okay. Thank you, student. And if you have any kind of doubt, you can mention in comment section. Thank you.